हाँ। ठीक है। चल लेट्स कम टू दिस। Audit matters, the financial statements recognize total assets on 118 million and PBT is आपका before income is आपका PBT is 11.5। materiality has been set, तो मतलब आपको materiality already set नहीं करनी है। ठीक है। New property lease, Marlowe's co expanded the operations during the year as a process they arranged a new property lease on this thing, so ऑपरेशन एक्सटेंड हुए। लीज कब आई है आपके पास? 1 अप्रैल 2004। ठीक है। द लीज इज फॉर 7 years with a rent free period for 12 months followed by 6 rental payments. The contract meets IFRS 16 leases and has been classified as a lease. The financial statements recognize a ROUA of 28.9 million। यार एक सेकंड, मेरे को अपना माउस लेके आने दो। आह, अगर मैं आज उसको लाया हूँ तो। ठीक है, माउस इज इन ऑफिस, नो प्रॉब्लम। एंड इट हैज अ 28.9 million। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, so far so good, which is correctly been calculated at effective rate of interest implicit in the rent agreement, oh, sorry, lease agreement. Management has not charged any depreciation on ROUA, which is a bigger problem, I believe. Stating the rent free period should not result in expense included in SOPL, which is again a problem. Management proposes to begin depreciating ROUA in the next financial period and will depreciate over the 6 years for which it has to make payments. Okay, the interest expense in relation to lease liability has been correctly accounted for in the financial statements. यहाँ तक की बात क्लियर है? यस। तो स्टार्ट करें। हाँ। स्टार्ट विद कैन ड्राफ्टिंग। आई जस्ट आस्क वन थिंग कि ये मतलब आप जब डिस्कस कर रहे हो तो व्हेन आई एम व्हेन आई एम व्हाट? हेलो? हेलो? सो आई कैन नॉट हियर यू। ऐसे आप डिस्कस कर रहे हो, आगे क्या बोले? एम आई ऑडिबल? You are audible, but you were somewhere lost. So tell me, हेलो? hello, what is your question? Tell me. Hello. I cannot hear you, Hitesh. Maybe type it out. Okay. ठीक है। The requirement was a new property lease. ठीक है। Our requirement is what matters to be considered। ठीक है। अब मैं वहां से सामान उठाना स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ कि ना? That is how हाँ। we work. That is how we operate. यस। The lease contract was for 7 months, 7 years। करेक्ट। तो ठीक है, the lease contract is for 7 years with
rent free period of of 1 12 year months. to be classified as a lease। ये हमने फैक्ट स्टेट किया है, क्लियर है? क्लियर है। Let me get this down. Let me add comment over here. Please note the order in which we are approaching the question. One, state of the fact. Is Hiteshi there or she left? Okay, she is there. Okay. Chalo. Next, according to according to the IFRS 16, the lease has been correctly accounted for in the financial statements। यहाँ तक क्लियर है? ये भी हमने फैक्ट ही स्टेट किया है, हाँ या ना? हम्म किया। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम एड्रेसल पे। However, the matter is to be considered because of the recognition amount and the depreciation charged on ROUA। तो अब मैंने इसको क्या बताया? हियर आई स्पोक अबाउट द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज अ पार्ट ऑफ मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन हाफ अ लाइन। क्लियर? क्योंकि देखो, ये तो बकवास है, हाँ या ना? इसके बिना तो मेरा आंसर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ये तो फिलर हो गया, ठीक है? और मैं इस फिलर के बिना ये वाला आगे का अमाउंट नहीं लिख सकता, ये आगे वाला एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकता। तो द एक्चुअल पार्ट दैट इज गोइंग टू मेक सेंस इज गोइंग टू बी दिस। क्लियर? क्लियर। अब चलो आते हैं उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू IFRS 16, the lease should be accounted at the present value of the lease liability in the SOFP, and the ROUA is to be recognized with depreciation pertaining to कितनी थी अमाउंट उसकी? आई थिंक 28.9 था ना? 28.9। हाँ, तो फिर हाँ। जिस हम्म तो 28 पॉइंट डॉलर 28.9 मिलियन। सही है या नहीं है? बढ़िया। 28.9 million is material above the threshold of 1.1 million. Furthermore, the depreciation on the lease is कितना आएगा depreciation बताना? 6 years वाला या 7 years वाला? That you have to tell me ना, you are giving है। SBI। हाँ, तो 7 years के हिसाब से 4.2। Okay, और ये लोग ने जो अकाउंट किया है फॉर अ 6 year पीरियड विच इज 4.8। okay, हिमांशु हाँ, कैसे? 7 साल के लिए लेगा, 6 साल के लिए लेगा? 7 साल के लिए। हाँ, तो 7 साल के लिए मेरी जो लाइबिलिटी वो डिप्रिसिएशन आ रहा होगा मेरा समवेयर अराउंड 4.1 मिलियन आ रहा होगा। 4.13 हम्म मिलियन राउंड ऑफ करके। 4.1 मिलियन।
which is nearly 4x of the threshold. करेक्ट। Clear? क्लियर। अगर मैं यहां पर भी 1.1 हटा देता हूं तो भी ठीक है। और ठीक अगर है। इधर मैं ये भी लिख देता हूँ pertaining to pertaining to it लिख दूंगा ना तो भी चलेगा। और इसको मैं नया कर देता हूँ इस लाइन में, तो मेरे लिए क्या हो गया, मोटा मोटा मेरे लिए 2 पॉइंट क्लियर हो गए। समझ रहे हैं मैं पॉइंट कैसे ब्रेक कर रहा हूँ? हाँ। ठीक है। ठीक है। कंसिडरिंग द लीज टाइमिंग, it denotes the time from which the payment shall be incurred for the lease. However, depreciation shall remain intact with the organization policies from the inception, इंसेप्शन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, स्टार्ट ऑफ द लीज एंड द recognition of the asset in the SOFP। क्लियर? ये मैंने क्लियर। लेयर ऐड करी है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। कि मैं ये बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा जो लीज का पेमेंट है वो तो ठीक है, वो तुम्हारा 1 साल बाद है, बट तुम्हारा डेप्रिसिएशन तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से लगेगा ना, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। हाँ। बट वो कब लगेगा? जब तुम्हारी असेट बुक्स में आ गई। असेट तो उसी दिन बुक में आएगी ना जिस दिन तुम्हारी लीज स्टार्ट होगी और ROUA स्टार्ट होगा। हाँ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड this is this is 4 precisely logical reasoning to the answer, और conceptual reasoning बोलो इसे। क्लियर हुई यहां तक की बात? क्लियर। अब फाइनल, क्योंकि ये रिस्क की तरह ट्रीट करना है इस आंसर को, मैंने बताया था मैटर टू बी कंसिडर्ड के अंदर कोई भी अकाउंटिंग आएगा तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं आएगा, रिस्क दैट द एक्सपेंसेस आर अंडरस्टेटेड। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मत लिखते बैठना यहाँ पर। हाँ। एंड दी, एंड की जगह इधर लगा देना ROUA। ठीक है। विच इज नॉन करेंट एसेट इज अंडरस्टेटेड। अब लिखना, अंडरस्टेटेड कैसे? ओवरस्टेटेड ना। क्यों NCA भी तो तुम्हारा तुम्हारे एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है। हाँ सॉरी, ओवरस्टेटेड हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक है, हाँ ओवर, बाय मिस्टेक, हाँ। दी, अभी इधर ये लिखोगे, दिस इज अ मटीरियल misstatement by size and shall remain until the management adjusts the FS for the same। ये चीज कहाँ से आई है? ये चीज ये चीज आई है तुम्हारे रिपोर्टिंग के लॉजिक से। मैंने इधर द वर्ड लिखा है ना, द बाई साइज वर्ड जो लिखा है, दिख रहा है? जो अभी जस्ट हम्म, बोल किया है मैंने, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी तुम लोग की वो उसका शीट का नाम क्या था, रिपोर्टिंग पार्ट 1, हाँ, क्योंकि जब भी मेरा ओपिनियन फॉर्म होगा, किस लेवल पे होगा?
इस लेवल पे होगा, करेक्ट। ठीक है। और फिर उधर ब्रेक किधर होगा, या तो ब्रेक इस लेवल पे होगा मटेरियल एंड परवेजिव पे, या वो ब्रेक होगा मटेरियल पे। अगर वो जस्ट साइज की ही बात होगी जस्ट, और उसके आगे कोई चीज नहीं हिट बैक कर रही है जैसे केस के अंदर हमें दिख रहा है अब तक, ठीक है, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। तो मेरे को उस लॉजिक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा कि मैं उसको साइज इसलिए बोलता हूं। तभी मैंने इधर बताया था ना, थ्रेशोल्ड ऑफ मटीरियलिटी एंड क्वालिटेटिवली मटीरियल। बात क्लियर हो गई, क्वांटिटेटिव मटीरियल एंड क्वालिटेटिव मटीरियल टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड ऑफ मटीरियलिटी। लॉजिक समझ में आया, मैं कौन सी चीज को कहां पर लिंक कर रहा हूँ, क्यों लिंक कर रहा हूँ। समझ में आया। और वो लिंक इसलिए भी हो रहा है, द रीजन, द अंडरलाइंग रीजन टू फॉर मी टू लिंक ऑल्सो एज वेल, इसकी मेरे को आगे जाके एक ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर काम करना है, जिसके अंदर मेरे को इन्वेंट्री का जो मैटर है वो रिजॉल्व हो चुका है। समझ रहे हो। अगर हाँ। इन्वेंट्री का मैटर रिजॉल्व हो चुका है और उसके अंदर ये एफएस में आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर और दूसरा कोई बैलेंस दिख भी नहीं रहा है जो परवेजिवनेस को हिट करेगा। करेक्ट। बात क्लियर हुई यस। हितेशी। क्लियर तो है whatever you said so far, ओके। but there is one issue that I have. ओके। अ, अ, जिस तरीके से पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हैं सर, हाँ। अ, ये एग्जैक्टली यही पैटर्न्स है हम एग्जाम में भी लिखेंगे। यस। ओके, क्योंकि बुक में वो ट्यूटर टिप्स में पहले में लिखा हुआ रहता है ना लीव कि इट, आई मैं डोंट टीच, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एन एग्जाम किट आंसर आउट देयर, यू आर सपोज हाँ टू प्रिपेयर एन example out there which is logical and can be solved by a student, not by an exam board. ओके, तो उसमें जस्ट इन केस आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कि उसमें जो उन्होंने लिखा है कि मेयर अप्रोच फॉलो करने की, पहले मटेरियलिटी बताना है आपको, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट, उसके वही बाद तो किया कंपनी है। ने या और एंटिटी, हाँ एंटिटी ने जो गलत किया है, हम ऐसे ऐसे हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऐसे छोटा छोटा करके लिख सकते हैं ना, पहला पैराग्राफ तो पहली बात मैंने लिखा मतलब नहीं ये है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पैराग्राफ जब हो जाता है जब मैं इसको इधर, ये लो, दिस इज हाउ इट लुक्स टू बी अ पैराग्राफ। तो हम ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं एग्जाम में। ऑब्वियसली, वहाँ कोई रूल लगा थोड़ा ना हुआ है, अरे उन्होंने आंसर में ये थोड़ा ना बोला हुआ है कि तुम पैराग्राफ में अरे लिखो। तो यही, ये तो कितने सब जगह कहा हुआ है ना कि आपको एग्जाम में पॉइंट्स में नहीं लिखना है, ट्रिपल ए सिवाय प्रोसीजर्स, क्योंकि उसमें पॉइंट्स में लिखने का भैया देर प्रोफेशनल इज अ मार्किंग नहीं डिफरेंस, मिलेगा। देर इज अ डिफरेंस, दिस इज वन आंसर। अब तुम इसके अगेंस्ट में 1 2 3 4 लिखते हुए चलोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। नहीं 1 2 3 4 नहीं, ऐसे ही नॉर्मल जैसे आपने तो लिखा आई है। तो राइट लाइक दिस ओनली, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके 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 फाइन ग्रेट। अब आता है एविडेंस। अच्छा, अपन ने ये पूरी केस स्टडी को अभी पढ़ा था, ठीक है। इस केस स्टडी को पढ़ते वक्त अगर मेरे को इसको वेरीफाई करना है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरी फोरमोस्ट थिंग जो मैं इस इन 2 पैराग्राफ्स में से निकाल सकता हूँ जो इन्होंने दिए हुए हैं। कैन आई से, हाँ, गो अहेड, बट ओनली वन। पहला, ओके, सर आप रिपीट द कर पहला सकते हो? एक सेकेंड। कॉपी ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड मैंने क्या बोला, मेरे ऑब्लिगेशंस, को सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे आगे की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट दैट्स ठीक इट। है। ओके। ओके, हिमांशु। सर मैं पूछ रहा था, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो सर? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर सवाल क्या था कि आपको साथ में ये भी बताना है कि एविडेंस क्या होगा अगर तुमको इस ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है ना लीज की और इन्वेंट्री की। हाँ। तो सबसे पहले हाँ। लीज की सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं लीज की सॉल्व करते हुए मैं ये पूछ रहा हूँ कि एविडेंस क्या होगा इस चीज को देखने के लिए। ठीक है सर। ओके। एक तो लीज एग्रीमेंट हो गया, चल बंदी ने बोल दिया, ठीक है। तेरे हिसाब से क्या होगा। हाँ, evidence और
नहीं भी आएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं आ रहा? क्या? एविडेंस नहीं आ रहा। क्या 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 हो गया, क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज। एक हाँ, और चीज, द बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स कैसे करेंगे? जैसे उसमें लिखा है ना आ कि जाऊंगा ये। मैं, आ जाऊंगा हितेशी। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। ओके। ओके, कमिंग डाउन टू एविडेंस। जब भी तुम लोग किसी भी बैलेंस के एविडेंस को अप्रोच करना चाह रहे हो, स्पेशली हिमांशु बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग एट इट, ठीक है? हाँ। तो यहाँ पर तो चल दिया हुआ है लीज अग्रीमेंट, तो तेरा सबसे पहले यहाँ पर बन गया एक पॉइंट। करेक्ट। तो मैं एक लीज एग्रीमेंट लूंगा। क्लियर होगी बात? क्लियर। ठीक है। अब पॉइंट ये है, मैंने डेप्रीसिएशन की बात करी थी, हाँ या ना? हाँ। डेप्रीसिएशन की अगर मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर था, दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर हाँ। चल रहा है, तो डेप्रीसिएशन कोई भी कंपनी अपनी एक अपनी कंपनी की इंटरनल अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनाता है, हाँ या ना? करेक्ट। तो फिर हाँ। दूसरा मेरा एविडेंस क्या बन सकता है, कंपनी की पॉलिसी जो डेप्रीसिएशन के लिए है। क्या? क्योंकि अब तो कंसल्टिंग में काम कर रहा है, तो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू दैट हाउ विल यू थिंक अबाउट इट। हाँ। ठीक है। अब तू जब एफडीडी करता है तो तेरे पास असेट्स आती हैं, हाँ। तो असेट का रजिस्टर भी आता होगा, करेक्ट, उनका एग्जिस्टेंस का वेरीफाई एग्जिस्टेंस करने की के उसकी लिए। पॉलि तो जो असेट का रजिस्टर है, क्योंकि देख, अभी ये भी तो सोचो ना कि अगर राइट ऑफ यूज एसेट है, तो कहीं ना हम्म। कहीं वो भी एक एसेट रजिस्टर के अंदर आती होगी। हाँ। तो उसको भी मैनेज करने के लिए कोई पॉलिसी होती होगी, तभी तो सजेस्ट असेट रजिस्टर के अंदर 10 चीजें तुम्हें दिखेंगी, हाँ या ना? हाँ। समझा। ठीक है। ओके। अब सर, एक बोल डाउट है। बोल बोल। सर, पर जैसे वो असेट रजिस्टर का पॉइंट कि हम लोग उसको इंस्पेक्शन करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, पर वो प्रोसीजर में नहीं आएगा या एविडेंस में भी लिख सकते हैं? वो दोनों में आएगा। देर इज अ सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि प्रोसीजर जब तुम लिखते हो, ठीक है, हाँ। उस प्रोसीजर को लिखो और बिल्कुल स्टार्टिंग में दो वर्ड्स ऐड कर दो, कॉपी ऑफ, इट बिकम्स एविडेंस। समझा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीशन ऑफ ऑडिट पे हो रहा है, समझ रहे हैं? अंडरस्टूड। हाँ। तो जब ये कंप्लीशन ऑफ ऑडिट पे हो रहा है, उस वक्त मैं बैठ के सारी कैलकुलेशन नहीं बैठ के करूंगा। उस वक्त मैं ये देखूंगा कि मेरे पास एक कॉपी होनी चाहिए और एविडेंस है, क्योंकि एक ऑडिट रिपोर्ट में लगेगा, तो ऑडिट रिपोर्ट में तुम क्या लगाओगे? ऑडिट रिपोर्ट में तुम ओरिजिनल तो लगाओगे नहीं, ओरिजिनल तो कंपनी को मेंटेन करना है फॉर करेक्ट। 5 इयर्स, एट एज पर सेबी हो गया, एज पर नैस्डैक हो गया, या एज पर कुछ भी हो गया, कंपनीज एक्ट हाँ। हो गया, या कुछ भी हो गया। स्टैंडर्ड गवर्नेंस ये कहती है कि 5 साल तक आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हो तो आपको 8 साल तक मेंटेन करने हैं। ओके। क्लियर? तो मैं क्लियर। ऑडिट रिपोर्ट में ओरिजिनल कॉपी तो नहीं लगा सकता किसी भी एविडेंस की, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉपी लगाऊंगा उसकी, मतलब फोटो कॉपी लगाऊंगा। हाँ। क्लियर होगी? क्लियर। अब और क्या सोच सकते हो चेक करने कॉपी के ऑफ लिए एंड बोर्ड मोमेंट मिनट्स। में? क्या हो गया? कॉपी ऑफ बोर्ड मिनट्स डिस्कशन। इसके लिए बोर्ड तक जाने की बात भी नहीं है, इसमें मैनेजमेंट कहीं पे इतना वो हुआ भी नहीं है। अच्छा, तो ये जो रेंट फ्री उन्होंने जो ये मैनेजमेंट प्रोसेस कर रहा है ना, टू बिगिन द डेप्रिसिएशन, तो इसी के लिए कॉपी ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट या बोर्ड डिस्कशन इन द बोर्ड मिनट टू असेस द डेप्रिसिएशन। बोर्ड मीटिंग में डेप्रिसिएशन तो ना डिस्कस होगा। ओके। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। बोर्ड में ओके। एक चीज सोचो ना कि 4.1 मिलियन के लिए, ठीक है, हम्म। एक बोर्ड मीटिंग होगी क्या? नहीं, वो बोर्ड भी मीटिंग नहीं डेप्रिसिएशन होगा। जैसी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, या फिर एक अनकैलकुलेटिव इशू के लिए।
प्रमोटर बोलेगा पागल थोड़ी ना हूं मैं इधर से तुम लोगों के साथ इतना एक डेप्रिसिएशन के पीछे दिमाग लगाऊंगा। हम्म। कोई भी कंपनी की बहुत डेप्रिसिएशन के ऊपर तो कभी लाइफ में दिमाग नहीं लगाएगी। ओके, तो ये लिख सकते हैं क्या कि टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन विद द ऑडिटर्स टू असेस द रीजनेबलनेस टू बिगिन द डेप्रिसिएशन फॉर द 6 year पीरियड एंड नॉट फॉर द नहीं, 7 year पीरियड। लो, अच्छा। इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास ये सब सोचने के लिए। मेरे को ये एविडेंस निकालना है कि भैया इन्होंने जो 6 साल की कैलकुलेशन करी है वो क्या दिमाग लगा के करी है। हाँ, क्लियर है। तो हाँ। वही तो, टू हाँ तो असेस द मैं, रीजनेबलनेस। लेट मी कंप्लीट हितेशी। हाँ, मेरे को इसको सॉल्व नहीं करना है अब। माई एजेंडा इज नॉट ऑफ सॉल्विंग एंड गेटिंग टू एन आर्ग्यूमेंटेटिव टोन कि बाबा 6 साल का क्यों किया, क्यों किया 7 साल का क्यों नहीं ओके, किया। ओके। मेरे को अभी ये देखना है कि भाई तुमने 6 साल का भी किया है तो किस कैसे किया है। क्या तुमने डेप्रिसिएशन जो लगाया है डिवाइड बाय 6 करके लगाया है, डिवाइड WDV करके लगाया है, या नहीं भी लगाया है तो तुम्हारे पास क्या तुमने उस चीज के ऊपर कोई स्टेप भी लिए थे कि नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो वो अगले साल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ड्राफ्ट होगा ना उस चीज का। करेक्ट। और भाई अगर वो 7 साल का लगा ही लेते तो मैं इधर एविडेंस क्यों निकालता, मुझे तो दिख ही जाता। तो वो तो ड्राफ्ट में जाएगी ना कोई चीज, तो जो चीज ऑलरेडी तैयार हुई ही नहीं है। आई अकल में बात। हाँ। हाँ। जब चीज चढ़ी ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैं उनसे लड़ूं किस बात पे कि 6 साल का क्यों लगाया 7 साल का क्यों नहीं लगाया। अरे 6 साल का भी नहीं लगा है तभी तो नहीं दिख रहा है, तो लगाया कहाँ है उन्होंने। अच्छा। ऑडिट कॉमन सेंस से सॉल्व होगी, ध्यान रखना। हाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके चला करो दिमाग में कि करा क्या है उन्होंने। उन्होंने नहीं करी है कोई चीज तो चढ़ेगी कैसे सिस्टम में या फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर। यस, यस। तो सबसे पहले अब जब एविडेंस लिख रहे हो तो तुम टेक्निकली लिख रहे हो कि तुमको वो एविडेंस क्यों चाहिए। और जब एविडेंस एक ऑडिटर लेता है वो भी कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के वक्त, तो उसका मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट में प्रोसीजर्स हुए होंगे। तो उसको वो कॉपी इसलिए चाहिए क्योंकि जो प्रोसीजर्स किए हैं उसके वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कॉपी चाहिए। तो टेक्निकली उसको प्रोसीजर्स जो किए हैं उसकी एक फोटो कॉपी चाहिए लीगली अपनी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे अटैच करने के लिए। तभी हम द वर्ड कॉपी ऑफ लगाते हैं और फिर उसके बाद प्रोसीजर लिखते हैं। क्लियर हुआ लॉजिक। क्लियर। तो यू विल टेक अ कॉपी ऑफ द लीज agreement टू अग्री द टाइम पीरियड। तुम एक लीज अग्रीमेंट देख के सबसे पहले क्या देखोगे कि वो 6 साल 7 साल की जो भसड़ मची है वो सही भसड़ भी है कि नहीं है। तो तुम उसको अग्री करोगे टू टाइम पीरियड ऑफ द लीज। एंड ये भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि भाई ये जो इन्होंने इधर फ्री फोकट में लिख दिया है ना कि 1 साल तक आपको रेंट पे नहीं करना है, दिख रहा है हम्म। यहाँ पर। ठीक हम्म। है, तो वो भी तो चेक करना है ना उस अग्रीमेंट में कि वो 12 महीने ही है ना या नहीं है। सिंपल, सिंपल इंग्लिश, सिंपल रिक्वायरमेंट चेक। हिमांशु क्लियर हुआ। क्लियर। हाँ। अब पॉइंट ये है, यहां पर 28.9 राइट ऑफ यूज एसेट है। राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू कैलकुलेट होती है
अचानक से तो हम्म। प्रकट नहीं होती है। F7 में भी हमने देखा था कैलकुलेट होती है, SBR में भी कैलकुलेट होती हाँ। है ना। तो मेरे को नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा डीप डाउन जाके सोचूं कि क्या और मैं ले सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि भाई 28.9 मिलियन लेजिटिमेट है कि नहीं है। तो फिर मैं क्या लूंगा, कॉपी ऑफ द कैलकुलेशन मेड बाय हु, मेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द लीज एसेट एंड द लीज लाइबिलिटी। लीज एसेट लिख लो यहाँ पर, या फिर ROUA लिख सकते हो। समझ में आई बात। हाँ। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है एसेट के ऊपर, तो मैं क्या लूंगा, कॉपी ऑफ द कंपनीज पॉलिसी फॉर द डेप्रिसिएशन पॉलिसी एंड द एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी टू रिव्यू द कैलकुलेशंस आर इनकंसिस्टेंट टू व्हाट, IA 16, IFRS 16। IFRS IAS 16। 16। पागल हो क्या, IA 16 IFRS 16 लगेगा ना। बात किसकी हो रही है, वो जबरदस्ती मैंने बोला था जस्ट बिकॉज इधर एसेट लिखा हुआ है। ट्रैप अगर बिछा रहा हूं तो समझो ना उस चीज को भी। भाई डेप्रिसिएशन। IFRS 16 के अंदर ही तो लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन होगी। और अगर लीज लाइबिलिटी की हाँ। कैलकुलेशन होगी तो एसेट मैनेजमेंट के अंदर ROUA की कैलकुलेशन भी तो IFRS 16 के बेसिस पे होगी। हम्म। तो पर IFRS 16 के बेसिस के ऊपर ही एसेट कैलकुलेट हो रहा है, तभी तो जाके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन क्या IFRS 16 के बेसिस पे थोड़ी होगा, वो तो IAS 16 के बेसिस पे अरे होगा ना। बाबा, मगर एसेट किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज हो रही है। लीज लाइबिलिटी मतलब 16 के IFRS 16 के बेसिस पर। तो फिर स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, बेसिस क्या बनेगा हाँ। तुम्हारा डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ प्रपोज्ड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ensure the disclosures are adequate and in line to IFRS 16। भाई अगर मेरी राइट ऑफ यूज एसेट होती है और लीज लाइबिलिटी आती है, लीज लाइबिलिटी होती है, तो मेरे को IFRS 16 के बेसिस पे डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि मेरी इतने की एसेट, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट के अंदर होगा, और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट आता है तो उसके अंदर एक तुम्हारी ROUA है। तो वो ROUA की जो कैलकुलेशन है वो डिस्क्लोजर्स के अंदर जाती है। आई बात समझ में। हाँ। और जितनी भी तुम्हारे पास कभी भी कोई वो आएगी, क्या कहते हैं, बैलेंस शीट्स आएंगी, कुछ आएंगी, तो एक अमाउंट से पहले ही उनका एक नंबर लिखा रहता है, रेवेन्यू के आगे 1, फिर ग्रॉस रेवेन्यू के आगे 2। तो वो जो 1 और 2 होते हैं वो नोट टू डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो वो जो हम्म। नोट टू डिस्क्लोजर्स होते हैं उसके अंदर ही कैलकुलेशंस डिस्क्लोज करी जाती है। तो तुम्हें वो चीज़ हाँ। चेक करनी पड़ती है। तो तभी तुम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट किसी भी बैलेंस के केस में तो उठाओगे ही उठाओगे, चेक करने के लिए कि उसके रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स के अंदर रेलेवेंट कैलकुलेशन डिफाइन करी गई है कि नहीं करी गई है। समझे। समझा। अब आते हैं मार्क्स के ऊपर। ये होते हैं तुम्हारे 4 पॉइंट। तो ये तुम्हारे 4 मार्क्स, 9 मार्क्स का आंसर है। तो आई वुड आइडियली मेक श्योर कि मेरा एविडेंस 4 नंबर से ऊपर का नहीं होगा। तो बाकी का अमाउंट कितना बचा, 5 नंबर का। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसके मेरे को 1 नंबर मिलेंगे कि क्यों मैंने उसको मैटर्स टू बी कंसिडर्ड में एनकाउंटर किया है। दूसरा, मैं ये बताऊंगा कि भैया IFRS 16 कहता क्या है। तीसरा, मेरा थ्रेशोल्ड क्या है। और तीसरे में भी ये आधा नंबर इधर मिलेगा।
फिर उसकी रेक रिकग्निशन के ऊपर जो मैंने बात की, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आधा नंबर मिलेगा, फिर तुम्हें इधर नंबर मिलेगा। क्लियर? क्लियर। एक जो लास्ट पॉइंट एविडेंस में आपने लिखा सर, हाँ। एक बार आप स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, द कॉपी ऑफ प्रपोज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर द एडिक्वेसी इज इन लाइन विद आईएफआरएस 16। ये हम्म। अगर हम आईएफआरएस 16 ना लिखे और अगर हम ऐसे लिख दे तो कि कॉपी ऑफ प्रपोज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर द डिस्क्लोजर्स आर एडिक्वेट एंड इन लाइन विद लीजेस, तो चलेगा क्या? इन लाइन विद लीजेस मतलब और कोई लीज नहीं हो सकती किसी कंपनी की? हाँ, तो मतलब इन जॉइंट लाइन विद वेंचर भी तो लीजेस। कभी कभी लीजेस में आ सकता है। जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग कहाँ से लीज में होगा? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारी कमर्शियल एक्यूमेंट बता देता हूँ मैं, तुम्हारी कमर्शियल एक्यूमेंट और जीके के लिए। हिटाची और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर था, ठीक है। और जॉइंट वेंचर के अंदर जो एसेट हिटाची की थी, जब वो लोग जापान या कोरिया से माइग्रेट हो रहे थे यहाँ पर, महिंद्रा ने क्या किया था, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के बेसिस पे लीजेस को उठाया था। तो जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग तो एज पर आईएस 28 होता है ना? यस, और उसके अंदर IFRS 16 भी होता है, IFRS 9 भी होता है। और IFRS 9 के बेसिस पे फाइनेंशियल असेट भी होती है, और फाइनेंशियल असेट तुम्हारी राइट ऑफ यूज ऑफ असेट भी हो सकती है। हम्म। नहीं, बट वो सब तो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जिसको चलना है वो तो चल ही रहा है। बट जब हम जॉइंट वेंचर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम तो सिर्फ उसको सिंगल लाइन अकाउंटिंग आईएस 28 ही बताएंगे। नहीं, अगर आपकी स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगी जैसे कमर्शियल, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, नहीं कमर्शियल एक्यूमेन है, अच्छा। जरूरी नहीं होता कि आप ओके। सिंगल लाइन अकाउंटिंग करते हो तो आप जस्ट जॉइंट वेंचर दिखा दोगे, बात खत्म। अगर जॉइंट वेंचर के केसेस में एसेट की यूज केस ही एक जॉइंट वेंचर का पर्पस हो गया, तब क्या करोगे? तो वो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया ना, टू अक्वायर द एसेट। अरे भाई, एक्वायर कहाँ किया, जॉइंट वेंचर चल रहा है, एक्वायर में तो स्टेक आ जाता ना मेरे पास, कंट्रोल हो जाता ना मेरे पास तो पूरी एंटिटी का, फिर तो हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये हमको पता ही नहीं था तो। तुम SBR का पेपर दे रहे हो भाई, साथ में यू गॉट टू नो दिस वेरी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इक्विटी शेयरिंग। What you see on Shark Tank is business combination. That is IFRS 3. Precisely IFRS 3 business combination. If I'm not wrong, IFRS 3 is business combination. हाँ, हम्म। मेरी इक्विटी शेयर हो रही है, मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है मेरे ऊपर, मैं शेयर कर रहा हूँ अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाउ कैन यू मिक्स विद इट? भाई, तो अगर स्टैंडर्ड्स को अगर उस तरीके से पढ़ो, थोड़ा सा उसके आगे पीछे दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ इट नहीं पढ़ना होता है अकाउंटिंग या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। देयर आर 10,000 सिनेरियोज। अभी रिसेंटली बता देता हूँ, तुम मेरे को ये बात कर रहे हो ना कि अगर तुम IFRS 16 नहीं लिखोगे, हुलू करके कंपनी है जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, HULU, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो IS 38 के हिसाब से, जो इंटेंजिबल एसेट है ना उसके हिसाब से अकाउंट नहीं हो रहे हैं, वो IFRS 16 के हिसाब से अकाउंट हो रहे हैं। क्यों? यार वो उसके अंदर वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक डील उन्होंने प्ले आउट करी है, क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर उनकी जो राइट्स है ना, स्ट्रीमिंग हाँ। राइट्स, वो स्ट्रीमिंग राइट्स को मेजर नहीं कर सकते हम लोग। आई देर इज अ बिगर प्रॉब्लम इन IS 38। जो स्ट्रीमिंग राइट्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे BCCI का स्टार स्पोर्ट्स के साथ है, BCCI हाँ। के और बाकी जितने भी ये ICC वगैरह के जो स्ट्रीमिंग राइट्स होते हैं ना, तुम हाँ। उसको IS 38 के अंदर कैसे डालोगे? प्रॉब्लम यहाँ आती है, PPE में तुम डाल नहीं सकते हो उसको, ठीक है। और वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है।
तो वो एक हाँ, एसेट होती है जिसको तुम एक टेम्परेरी बेसिस पे यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। समझा। और इसलिए फिर उसके अंदर जैसे जैसे व्यूअरशिप होती है ना, तो व्यूअरशिप की बेसिस पे उसको फिर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तभी ओ, तभी तो स्ट्रीमिंग राइट्स वालों के मजे हो जाते हैं जिस दिन इंडिया पाकिस्तान होता है, क्योंकि उसमें इतनी हैवी व्यूअरशिप आती है कि एकदम से वो लोग एसेट को जो उन्होंने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया है ना, वो टेम्परेरी रिकॉग्निशन के पर्पज से वो लोग उसको ऑन द स्पॉट ही जीरो कर पाते हैं। अगर उस पर व्यूअरशिप ही नहीं आएगी ना, तो उसका मतलब ये है कि उनकी डेप्रिसिएशन नहीं लग पाएगी। और फिर उस वक्त राइट ऑफ यूज एसेट के हिसाब से तो वो रिकॉग्नाइज होगी। और डेप्रिसिएशन पता है किसके हिसाब से लगेगा? रनिंग कॉस्ट मॉडल के थ्रू, बेस्ड ऑन दी कंजम्पशन, जैसे एयरप्लेन्स और इंजन्स के लगते हैं, समझ रहे हैं। हाँ। मशीन आवर्स के हिसाब से वो, दैट इज हाउ दे डू इट। अकाउंटिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स बाबा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियोज व्हेन यू आर रीडिंग दी स्टैंडर्ड्स ना। बहुत सारी चीजें ओवर एंड अबव थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़नी पड़ती है। प्लस हुलू इज इनटू अ जॉइंट वेंचर उसमें भी। किसके साथ? यार उसके दो कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर चल रहा है हुलू का, एक सेकंड बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक कोई केस ही पढ़ रहा था मेरे पास, और एक कंपनी आई थी, उसने मुझे बताया था। उनका चल रहा है एनबीसी, यूनिवर्सल, फॉक्स कॉर्पोरेशन एंड जो रिलेटेड डिज्नी बनता है, डिज्नी एंड एनबीसी के साथ चल रहा है हाँ, उनका। तीनों के साथ जॉइंट वेंचर, दोनों के साथ है? एनबीसी यूनिवर्सल जो अपना वो है ना, हाँ, बास्केटबॉल, हाँ, हाँ। वो एनबीसी। और फॉक्स के साथ था, क्योंकि अब फिर उसके फॉक्स क्या हो गया, फॉक्स गॉट अक्वायर्ड बाय डिज्नी, ओके, तो अभी वो डिज्नी तो हो वो गया, टेक्निकली समझा। डिज्नी हो गया। हाँ। ओ। तो इन शॉर्ट द लाइन इज यू विल हैव टू राइट इन लाइन टू द IFRS 16। इसका कोई भी रूट कॉज नहीं, मतलब फिर आप लिंक भी नहीं कर पाओगे ना अपने आंसर को, ये भी तो सोचो। मैं यहाँ पर आंसर को लिंक कैसे करूंगा किसी भी कंपनी के लिए? क्योंकि मेरे लिए ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लेके आऊँ कमर्शियल एक्यूमेन हटा के, दिस विल प्ले अ की रोल फॉर मी। दिस विल प्ले अ की रोल फॉर मी कि हाँ भैया मैंने उनकी ही लाइन पकड़ी हुई है, कि तुमने खुद बोला था ना हम लोग IFRS 16 यूज कर रहे हैं, हम्म। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ तुम्हारे ही IFRS 16 के बेसिस पे लगेगा। और दूसरी बात, टू आंसर योर क्वेश्चन हितेशी, डेप्रिसिएशन इज नेवर अकॉर्डिंग टू IAS 16। डेप्रिसिएशन इज अकॉर्डिंग टू आपकी IAS, जो तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी का IAS होता है, 8। IAS 8। क्लियर? क्लियर। हाँ। ठीक है, आ जाओ। मार्लोको हैज रिसेंटली नेगोशिएटेड टर्म्स विद न्यू सप्लायर्स, ठीक है, होगा कोई। Included in the contract in a clause that allows the supplier to require return of the products at any point in time, ठीक है। मान लो Coke can also return products within the set period of time if they remain unsold. Inventory purchased from the new supplier is for 8.1 million, included in the company's financial statements as inventory. The amount is recognized at cost and is lower than NRV। तो एक सेकंड, थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? गया। किसके हिसाब से ये IAS 2 का क्वेश्चन है? तेरे को लग रहा है ये इन्वेंट्री है हितेशी और हिमांशु? नहीं। नहीं। थैंक गॉड। क्या है ये? IFRS 15। कंसाइनमेंट। रेवेन्यू है ना भाई हिमांशु। हाँ, पर इन्वेंट्री तो कंसाइनमेंट पे होल्ड किया ना।
हाँ बट इन्वेंट वो आएगा तो उसी के अंदर ही ना भाई। हाँ हाँ, आएगा उसी के अंदर, उसी के यस। अंदर ही ना। स्कोप 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 इज नॉट IAS 2, दिस इज फॉर यू टू भटकोफाई। समझा, हाँ वो तो समझा। ये तुम्हें भटकाने के लिए दिया हुआ है इन लोगों ने। हम्म। ठीक है, अब मैं फैक्ट स्टेट करूंगा। यस। एक सेकेंड, समवन इज एक्टिंग दो। एक सेकेंड है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, फैक्ट को स्टेट करना है। द हम्म। इन्वेंट्री हैज बीन सोर्स्ड थ्रू अ न्यू सप्लायर and the terms for the same were recently negotiated. क्लियर? क्लियर। अब मैंने इसको क्यों कंसिडर किया है ये भी बता देते हैं। the control of the inventory is with the supplier henceforth, according to IFRS 15. The inventory should not be recorded as inventory in the financial statements. Clear? क्लियर। The inventory is worth 8.1 million, which is above the materiality threshold of 1.1 million. करेक्ट। Currently, मैटर्स टू कंसिडर में हम लोग 8x या वैसा 8 टाइम्स लिख सकते हैं, या ये अमाउंट ही अगर तेरे मेंशन पास करना इतना टाइम है कर पाएगा तो वो वाली बात है ना, क्योंकि मैं इसको सबसे कम शॉर्ट आंसर लिखना चाहूंगा क्योंकि ये 7 नंबर का है, 9 से कंपैरिजन में, समझ रहा है? है? हाँ। अब currently the inventory is being inventory recorded in the FS is incorrect, as हम्म। it should be recorded in FS as what? क्या क्या रिकॉर्ड करोगे, इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे? जब इन्वेंट्री बिक जाएगा तब।
तो पड़ी हुई इन्वेंट्री का क्या करूंगा मैं जब तक? उस कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का को क्या दिखाऊंगा मैं फिर? रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। There are two types of receivables: cash receivable and trade receivables. Trade receivable. अब इधर प्रॉब्लम क्या है? Hence there is a misclassification which is material to Marlowe's audit. However, holds no impact in the FS, as the impact due to misclassification will be zero. कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट थोड़ी ना है। कोई चीज अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड का गेम ज्यादा क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एसेट की बकेट के अंदर उन्होंने उस चीज को करंट एसेट्स में ही डालना था जो इन्वेंट्री होती है। बट अब वो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा जो होनी चाहिए थी। तो एसेट का जो सब टोटल आएगा वो तो सेम रहेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो कोई ऐसा इम्पैक्ट आया ही नहीं, अगर देखा जाए तो। कि किसी की अन रिकॉर्डिंग हो गई हो, वो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई है बट वो एक गलत हेड के अंदर रिकॉर्ड हो गई हैं। यहाँ पर चीजें क्या हो गई थी? यहाँ पर तो चीजें मिस हो गई थी ना। यहाँ तो हम्म। कंसिडरेशन में ही नहीं थी, यहाँ पर तो कंसिडरेशन था बट कंसिडरेशन एक गलत बकेट के अंदर चला गया था। क्लियर हुई बात? क्लियर। अब आता है एविडेंस। तो सीधी बात है, कॉपी ऑफ। अगर मैं सप्लायर के साथ मेरी नेगोशिएशन हुई है तो सप्लायर एग्रीमेंट बना होगा, करेक्ट। और उसके अंदर सप्लायर एग्रीमेंट बना होगा, और इधर हमारे ऊपर बात क्या चल रही है कि भाई वो परचेज करी गई है, या फिर अगर वो सेट टाइम पीरियड में अनसोल्ड है तो क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। तो उस चीज हम्म। की भी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी। तो मुझे उस चीज की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा? कॉपी ऑफ दी सप्लायर agreement to understand the terms and conditions with respect to को WRT लिख सकते हो, द इन्वेंट्री रिटर्न पॉलिसी एंड दी सेलिंग पॉलिसी। अब इस चीज को मैंने जो टेस्ट किया था उस वक्त, ये मेरी स्केप्टिसिज्म दिखा रही है कि भाई ये चीज सही में है कि नहीं है। ऊपर भी जब मैंने ट्रेड अग्रीमेंट लिया था, लीज एग्रीमेंट लिया था, तो यही मेरी स्केप्टिसिज्म, मेरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टेस्ट हो रही थी और मेरे जजमेंट टेस्ट हो रहे थे उस वक्त कि भाई मैं उस चीज को एक क्वेश्चनेबल तरीके से देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, क्या वो चीज सही है कि नहीं है। आई बात समझ में कि स्केप्टिसिज्म किस तरीके से आया इधर? हाँ। अब फिर तुम क्या देखोगे? दी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को देखोगे टू असेस द अमाउंट ऑफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड द अमाउंट ऑफ द सेल्स। देखो, अगर मेरे पास 8.1 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और मेरे पास गुड रिटर्न भी होने हैं जो इधर लिखा हुआ है इस इनके हिसाब से, ठीक है, अगर वो अनसोल्ड है, तो टेक्निकली क्योंकि इन्होंने अब तक सारी बकवास करी हो रखी होगी तो इन्वेंट्री रजिस्टर में करके रखी होगी और रेवेन्यू रजिस्टर में करके रखी होगी। तो करेक्ट। मेरे को ये भी तो देखना होगा ना कि इन्वेंट्री रजिस्टर में जब ये 8.1 की इन्वेंट्री आई थी तो वो एक्चुअल में 8.1 की कितनी थी? क्या वो 10 मिलियन की इन्वेंट्री आई थी क्या? तो जिसमें से इनो 10.1 की अगर इन्वेंट्री आई थी तो इन्होंने 2 मिलियन तो सोल्ड ऑफ कर दिया होगा। तो उसका वो सेल्स में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जो ये 8.1 है वो एक्चुअल में अनसोल्ड है, या फिर इसमें से भी कोई पार्ट सेल हो चुका है जो इन लोगों ने इसमें
रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। आई बात समझ में। हाँ। दिस इज हाउ यू थिंक। अब और क्या कर सकते हो चेक करने के लिए कि ऑडिटर ने क्या मतलब, अब क्योंकि ये एंड ऑफ ऑडिट है, ठीक है, और इसका इंडिपेंडेंट रिव्यू हो रहा है, तो मतलब ऑडिट टीम ने इसके अगेंस्ट में काम कर चुके होंगे। तो उस वक्त जब ऑडिट टीम ने प्रोसीजर्स किए होंगे तो उन्होंने एक प्रोसीजर पक्का किया होगा, वो है दी कॉपी ऑफ द सर्कुलराइजेशन फ्रॉम द सप्लायर टू वेरीफाई द आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट टू दीज गुड्स। सर्कुलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके ऑडिट टीम ने, ठीक है, एक लेटर भेजेगी, वो भी क्लाइंट के लेटर हेड पे और एक ऑडिटर के लेटर हेड पे, कि आप सप्लायर को कि भैया आप ये बताओ कि आपकी तरफ से कितनी इन्वेंट्री अनसोल्ड और पेंडिंग है इस कंपनी, जो जिस क्लाइंट के लिए मैं ऑडिट कर रहा हूं उसकी तरफ से। तो वो जो अमाउंट वो हाँ करेगा, कि वो पहले बोलेगा हाँ पेंडिंग है, तो अगर वो बोलेगा कि चलो भैया मेरे हिसाब से 8.1 मिलियन की पेंडिंग है, तो फिर ये वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ये सही है अमाउंट। क्लियर। क्लियर। फिर अब एक चीज समझो, इन्वेंट्री और रेवेन्यू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बोर्ड सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बनेगा तो ही प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बनेगा तो ही तो तुम्हारा शेयर प्राइस बढ़ेगा, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और शेयर होल्डर्स की रिटर्न बढ़ेगी। हाँ या ना? हाँ। तो फिर आप इसके अंदर एक कॉपी लोगे डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन की विद द मैनेजमेंट ऑन द मिसक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी एंड अंडरलाइंग assumptions on this misclassification। आई बात समझ में हाँ। कि भाई ये चीज मैनेजमेंट की डिस्कशन, और ये डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन किसके साथ है? दिस डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन इज बिटवीन whom? ऑडिटर ऑडिटर एंड एंड द मैनेजमेंट, नॉट द बीओडीज, या फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी नहीं। अगर ये लोग इस चीज को नहीं करेंगे तो ये मैटर हाईलाइट हो सकता है टीसीडब्ल्यूजी को। समझे? समझा। आगे चले। हाँ। डाउट? नो। हितेशी? नो डाउट। Now we move to B, which is the impact on the यहाँ तक की बात क्लियर है भैया सबको, बिफोर आई मूव ऑन टू द इम्पैक्ट पार्ट? क्लियर है। कितनों की हवाइयाँ छूटी हुई हैं अब तक? है भाई? क्या सर? हवाइयाँ कितनों की छूट चुकी है? नहीं सर, है अभी भी। जिंदा हो? यस। क्लियर हो गया कि आंसर को अप्रोच कैसे करना है? हम्म। हेलो। हेलो, हाँ क्लियर हो गया कि का आंसर को कैसे करना है? हाँ।
एक सेकंड। चलो, ओके। अब अगर उन्होंने ये 8.1 की मिसक्लासिफिकेशन ठीक कर दी है, यही तो इन्वेंट्री का मैटर इन्होंने सॉल्व कर दिया है। क्लियर है? क्लियर। हाँ या ना? हाँ। तो अब उन्होंने बोला बाकी कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर्स में काम नहीं करेंगे ये लोग। और सबसे पहली बात, यहीं पे इन लोगों ने तुमको हिंट दे दिया था डिस्क्लोजर्स का, जो तुम्हें लिखना था एविडेंस के अंदर। हिमांशु, समझा मैंने हाँ। डिस्क्लोजर का पॉइंट कहाँ से उठाया था? सॉरी सर। मैंने क्वेश्चन के अंदर से ही उठाया था ये। हाँ। क्यों? क्योंकि देख सोच, अगर इन्होंने इधर ये बोला हुआ है कि मार्लोस ने इन्वेंट्री का मैटर जो है वो सॉल्व कर दिया है, और कोई एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर्स नहीं करना चाहते, तो टेक्निकली IAS 16 के हिसाब से कुछ चीजें डिस्क्लोज तो होनी चाहिए थी, यस, होनी चाहिए थी। जो मिस कर गए ये लोग, चांसेस हैं। हम्म, हाँ। तो वो मैं एविडेंस के थ्रू वेरीफाई करूंगा। समझा? हाँ, समझा। प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस क्यों लगाने के लिए बोलता हूँ, ये तुम्हारे लिए ना पेपर में चीजें आसान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उधर इतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। तुम्हें चीजों को क्वेश्चन के अंदर से ही बहुत सारी चीजों को पिक करना पड़ेगा। ये एक तो होता है केस में से पिक करना, एक एक होता है क्वेश्चंस के अंदर से पिक करना। ये क्वेश्चन के अंदर से चीज पिक करी हुई है। प्लस इसके आगे भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू प्रॉपर्टी लीज। तभी मैंने इसका एक कॉपी इधर उठाई। समझ रहा है? ये इवन इट इज फॉर हितेशी। समझ में आई बात कि कहाँ से एविडेंस उठाया गया है? हम्म। प्योर कंसल्टिंग काम किया है ये मैंने, हिमांशु, जो हमने A&M में बैठ के किया है। हाँ। कि क्लाइंट की चीज उठाओ, क्लाइंट को ही बेच दो। यस। So Hiteshi, if she doesn't know, me and Himanshu have worked in the same organization before. And he knows me before A&M as being an audit tutor. And I don't know how, but then it's okay. शायद GT में देखा था ना तूने मेरे को, हिमांशु? हाँ, आपके साथ मैंने जीटी में पढ़ा था ऑडिट। हाँ, GT में पढ़ा था। 24 के मार्च या जून, सितंबर अटेम्प्ट में। हाँ। सितंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ा होगा तू मेरे से। हाँ। हाँ, तभी मेरे को याद है अच्छा, क्योंकि उसमें मैं तीन एफेट पढ़ाई पेपर थी दे मैंने। रहा था। हाँ, उसमें एफेट पढ़ाई हाँ। थी ना। हाँ। वो भी क्या दिन थे भाई। अब आते हैं उस। इधर। ये कितने मार्क्स का है? सबसे पहली बात, 4 मार्क्स का है। ओके। तो 4 रेलेवेंट पॉइंटर्स लिखने हैं मेरे को। तो लेट्स स्टार्ट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओवर स्टेटेड बाय कितना? अब मैं फोर इधर पॉइंट वन 12.2 लिखूंगा, 4.1 लिखूंगा, या 8.1 लिखूंगा? 4.1 लिखा है। एज ड्यू टू द depreciation not charged on ROUA। तो पहला तो मैंने क्या बताया? इम्पैक्ट बताया। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्लियर? क्लियर। अब दिस इज अ मिस स्टेटमेंट which relates to single balance and is not pervasive in nature। ये चीज कहां से उठाई है मैंने? ये चीज मैंने उठाई है तुम्हारी रिपोर्टिंग एक्सेल के फाइल में। अंदर से, यहां हम्म। से। मैंने क्या बोला? ये आप यहां से उठाया है। दिस इज मी लीडिंग टू
the impact on the audit report that will be. हाँ हितेशी कुछ बोल रही थी। ये आप एक्सेल फाइल शेयर करते हैं क्या? हाँ करनी है, मेरे लॉक नहीं करा है, मैं लॉक करके भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके। हाँ उसके बाद in this case the impact on the audit report shall be qualified opinion based on the misstatement and the basis of qualified opinion will be detailed in the basis of the qualified opinion paragraph in the audit report। वैसे तो तुम लोग उधर स्पेलिंग मिस्टेक करके आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द बेसिस ऑफ को, अब इधर ना एक खोल के लिखना इस चीज को कि इम्पैक्ट कैसे आएगा। द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ द क्वांटिफिकेशन of the misstatement will be discussed, सर the reason of the qualified opinion। बोलो भाई साहब। सर हम लोग क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर नहीं लिखेंगे? नहीं, ओपिनियन के बारे में बात करना है, एंड इवन इफ यू वांट टू क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर भी लिखेगा तो भी इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि तू ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना रहा है, तो इम्पैक्ट बता रहा है। समझ समझ गया? गया। हाँ। अब मैंने बोला था ना ऑडिट रिपोर्ट का सवाल आता है, तो उसको हम्म, अप्रोच कैसे करना है। तो हाँ सबसे पहले मार्क की अप्रोच रहेगी ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट कितने का है, ओवर स्टेटमेंट का, अंडर स्टेटमेंट का। फिर तुम बात करोगे कि उससे कोई परवेजिव इशू क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सिंगल बैलेंस इशू है या फिर वो मल्टीपल बैलेंस इशू है। सर। ठीक है। उसके ठीक है। बाद तुम बात करोगे कि क्योंकि वो एक जिस टाइप का भी वो इशू है उसके बेसिस पे जो इम्पैक्ट आएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो ओपिनियन के ऊपर आएगा, विच इज द क्वालिफाइड ओपिनियन इन दिस केस। हम्म, फिर उसके बाद बोलोगे कि जो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन का जो पैराग्राफ है वो इस क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर डिटेल आउट किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। हम इधर क्यों डिटेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसकी डिटेलिंग कहाँ कर दी है, यहां पर कर दी है 9 नंबर में। सर। तो मैं वापस तो डिटेलिंग नहीं कर सकता ना 4 नंबर के लिए। हाँ। मतलब देर इज नो रीजन फॉर मी टू गो बैक अगेन एंड एक्सप्लेन द होल रामायण टू देम। उसके बाद फिर तुम बोलोगे कि बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन का जो पैराग्राफ है वो क्वांटिफिकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट के ऊपर बात करेगा, हेंस द रीजन फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर? क्लियर। आ गई बात अकल में? हाँ। सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड मार लो उसको। ये क्या पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने कंप्लीशन रिव्यू रिपोर्टिंग पार्ट का? मतलब कि ओवरऑल थ्रू आउट अभी तक? पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया ही, इसमें और क्या 25 मार्क्स से ऊपर बचा है।
नहीं नहीं, मतलब ये आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या, मतलब इससे कि पहले मैं मेरा एक इसके और कर पहले कोई। चुका हूँ रिस्क का, करवाएंगे हम रिस्क का भी आगे। चिल सीन्स। ओके ओके। मैं क्या कर रहा था, इसको सेव कर रहा था यार, एक सेकंड। हाँ, हम्म। आपने एसीसीए का वो पीआर का जो करना होता है वो कैसे किया था? ये वो तो मेरे सीए ने कर दिया था, क्योंकि मैं 3 साल सीए फॉर्म में था ना। हाँ, वो तो मेरे तो मेरे को प्रिंसिपल ने कर मेरे प्रिंसिपल ने कर एएनएम दिया। में करवाना है तो फिर उन लोग के पास अकाउंट बनवाना पड़ेगा क्या एसीसीए में तो? ये लोग अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है ना। क्या बोल रहे हो? ये लोग अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है ना। हाँ, दे तो आर नॉट अप्रूव से अप्रूव्ड। ही करवाना होता है? नहीं, करवा सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वैसे तो अगर मैं होता तो मैं अप्रूव से ही करवाता, ओके। है ना। हम्म। ये इसके ऊपर बात करते हैं अपन, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं तो मैं भी साइन कर दूंगा ना, तू था ना मेरे साथ एएनएम में। हाँ, आई विल साइन इट फॉर यू। ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। अरे वाह। फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो भी तू है ना, मेरे को डेट बता देना, मैं उतना साइन कर दूंगा, ठीक है। ओके। दैट आई कैन डू। क्योंकि वहां पर तो सीए के चक्कर काटे का कोई मतलब नहीं है, तो वैसे भी मेरा जूनियर ही था उधर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन मैनेज दैट। दैट विल बी ओके। ऑन मी। मेरा 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 वो डाल देना, क्या कहते हैं, मेरा पर्सनल मेल डाल देना, आई विल साइन इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है।
एक सेकंड में भेज रहा हूँ, मेरे को उसको प्रोटेक्ट करने दो पास हाउस पे। सारे सर्टिफिकेट प्रोटेक्शंस लगा देंगे उसको। तो बाद में वो रिपोर्टिंग का भी भेज देना। हाँ, मैं रिपोर्टिंग का भी अभी यही कर रहा हूँ। एक सेकंड, लगे हाथ ही कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ बस।